Hello and welcome to Raheen's Odyssey. This is me, Raheen, and as you know, we have started a series of interviews, and today we have Ruslan Baloch. I have met him, and he's a very great person, and he's doing a lot. And without further ado, I think we should get started. So, hello, how are you, Ruslan? Hey, thank you, Raheen. Thank you so much for inviting me. And I'm good. I'm good. Thank you. How are you? How are you doing? I am doing great. So, please introduce yourself for those who don't know who you are. Okay. So whenever someone asks me this question, this is a bit tricky and I guess a very difficult question for someone to ask himself to or herself to introduce themselves. So actually, जब मुझसे ये पूछते हैं तो I call myself a struggler. Struggling entrepreneur, struggling in life to get to a place where I belong, where I wanted to reach. So basically, नाम मेरा इस्लाम बलोच है and मैं बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है और I'm a software engineer by choice और मैं काफ़ी सारे कामों में इन्वॉल्व हूँ इस टाइम मैं तीन मेरे स्टार्टअप्स हैं जिनको मैं रन कर रहा हूँ वन इज़ Futaro which is a marketplace for content creators, other one is Girls Who Code Pakistan, the co-founder और उसमें हम जिसमें females को digital skills वगैरह और coding वगैरह सिखा रहे होते हैं and the other is the Offroaders. It's a tourism startup. I call it a spiritual journey through a materialistic world. इसके अलावा I'm working with an IT company that is Tech Valley. I'm the outreach manager there. Or I'm working as a trainings manager with a Dursha Laptopbad. That is a first Pakistan first public-private incubator. और उसके अलावा मैं Google Startup Grind Aptobad chapter का event manager भी हूँ. So that's a bit about me. I Yeah, guess. so you really do a lot and you really need to admit this. Yeah. Okay, so you know me, I am a 12-year-old, so I'm just gonna get started from your childhood. So how was your early childhood? Uh, in a sense, like, in what sense? Rahim, can you hear me? Yeah, now I can hear you because for a moment you just froze. So that is what I was looking you coming back. Okay. So I was asking my childhood in one sense. What sense? Okay. Okay, so let's ask question by question. Were you a naughty kid Okay. or were you a shy kid? So what kind of a kid were you? Oh, okay. I was a pretty naughty kid. My mom, dad they used to tell me the stories what I've been doing in my childhood. And, I was climbing the walls. Once I was मैं एक बार घूमने भी गया था. Actually, my father is in the army, so we've been traveling all over the Pakistan. So हम काफी जगह पे posted रहे हैं. So it was when we were in Gujranwala, Kent, and तब मैं घर से मतलब निकल गया था. एक्चुअली मेरे जो अंकल थे एक उनसे मैं ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अटैच था. एंड व्हेन वी मूव्ड इन गुजरांवाला तो आई यूज्ड टू लाइक आई एम गोइंग टू सी माय अंकल. सो मैं एक बार घर से भी निकल गया. आई वाज इन द बस एंड द आर्मी फाउंड मी देयर. I always been in the grills. So yeah, I was a pretty naughty kid in my childhood. I got a couple of stories. Yes, I think I think for me it's very relatable because I've also been moving from a place to another because of my father being there as well. So you were a very naughty kid, यानी बहुत शरारती थे. और मेरे ख्याल से जैसा भी बंदे का बचपन होता है वो बंदे की एडल्ट लाइफ को या फिर जो भी सक्सेसफुल बंदा होता है उसका बचपन जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. So how many siblings do you have? That's a magical question I asked almost everybody.
So basically, I got two siblings. I'm the only son of my parents, and I got two sisters, and I'm the elder one. So you're the eldest. Yeah. तो जितनी भी जो जो भी नॉटीनेस वगैरह थी ना, वो सारी छोटी छोटियों ने करके वो आप पे डालना होता था और आप डांट खाते थे। यस, क्योंकि मैं एल्डेस्ट था, तो जो भी इश्यूज होते तो ये भाई ने किया है, और डांट मुझे पड़ रही होती थी। और सब आई बंदा रिमेम्बर स्पीचलेस होता है। दैट। तो डू यू हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ योर चाइल्डहुड, कोई भी नॉटीनेस, कोई शरारत जो आपने की हो, मेमोरेबल स्टोरी? Okay, so memorable. There are a couple of stories. For example, जैसे मैंने आपको एक बताया कि मैं अकेला निकल गया था. I was in a bus sitting with a lady pretending to be her child so that they can ask for my fare or something. So I was traveling all the way to Multan from Gojrapala to see my uncle. So that's a one story. और उसके बाद मेरी एक स्टोरी जो आज तक मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली मुझे बता रही होती है, उसे कह रहे होते हैं, वो ये कि मुझे स्टडीज पढ़ने का ज़्यादा कोई शौक नहीं होता था। तो आई वाज इन 1 or 2 क्लास जब हम मुल्तान में शिफ्ट हुए थे, एंड आई वाज एडमिटेड इन आर्मी पब्लिक स्कूल। तो मेरे फादर मुझे ड्रॉप करके आते थे, और उनके घर पहुंचने से पहले मैं घर पहुंचा होता था पहले। तो मैं स्कूल से भाग जाया करता था एक्चुअली। तो फिर उन्होंने टीचर से बात की कि इसको ऐसे नहीं जाने देना, और कभी छुट्टी भी हो तो वो मेरी डायरी पे लिख के लाया जाए, तब हम बिलीव करेंगे कि इसको छुट्टी है कॉलेज स्कूल से। तो मैं क्या करता था, अपने जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे 9th 10th क्लास के, उनको डायरी लेके जाता था कि भाई ये प्लीज लिख दें कि कल छुट्टी है। तो मैं फिर अगले दिन छुट्टी कर लिया करता था। तो ये एक स्टोरी है जो मुझे आज तक याद है। So yeah, I got ओके, couple of things like that. सो यू वर अ रियली रियली नॉटी किड, तो लाइक इंतहाई वाली शरारतें थी। ये शरारतें तो मैंने करी हैं। Ah, okay, yeah. हम्म। तो टीनेज लाइफ कहती थी कैसी थी, लाइक जब आप बड़े हुए थोड़े से, तो वो टाइम किस तरह था, क्योंकि दैट इज जब आप ज्यादा मेमोरीज बनाते हो। हाँ, मेमोरीज तो देखी जाए तो एक चीज जो नहीं बना सका मैं अपने इस अब तक के कैरियर के अंदर, वो थे अच्छे दोस्त। इवन स्टिल अब तक लाइफ में सिर्फ मेरे दो ही दोस्त हैं। मिलते गए क्योंकि वी बीन मूविंग ऑल ओवर द पाकिस्तान, सो काफी दोस्त मिले, काफी ज्यादा मेमोरीज बनी। काफी एक मोमेंट होता है जब आप एक नई सिटी के अंदर मूव करते हो, फिर एक मोमेंट होता है जब 1 to 2 years के बाद आप उस सिटी से वापस कहीं किसी और सिटी के अंदर मूव करते हो। तो कपल ऑफ मेमोरीज होती हैं जो आप अपने साथ लेके जा रहे होते हो। तो या आई गॉट सो मेनी मेमोरीज। इवन अब भी जब भी मैं किसी सिटी के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैं पहले रह चुका होता हूँ, तो मेरा फेसबुक का एक स्टेटस होता है जो शायद आपने भी कई बार देखा हो, एनीबॉडी अवेलेबल फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो एक या दो बंदे कभी कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो फिर वो सारी बातें पुरानी डिस्कस होती हैं। तो या दैट वाज एन अमेजिंग टाइम आई हैड इन माय कॉलेज, और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, फिर स्कूल्स की जो एंडिंग की लाइफ होती है। तो या दैट वाज प्रीटी अमेजिंग। इवन एवरी व्हेन यू आस्किंग द एयरफोर्स क्वेश्चंस। किड, एवरी एयरफोर्स एंड आर्मी किड, उनके साथ यही होता है कि एक शहर में जाते हो, आप थोड़ा सा टीचर्स के यूज टू होते हो, स्कूल में थोड़े से फ्रेंड्स बनते हैं और पता लगता है बस अब जा रहे हो, बस उधर से आप चले यस। जाते हो। whenever you get हाँ। comfortable in that place, आप यहाँ से चले जाते हो। तो वो बहुत, मैं भी मस्त, मुझे भी मसला होता है, लेकिन मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, तो मुझे कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता या। है। तो आपको कब फील हुआ कि आई नीड टू डू समथिंग इन माई लाइफ? और एक्चुअली आई रिमेम्बर आई वाज इन थर्ड क्लास जब मेरे फादर ने मुझे फर्स्ट टाइम एक कंप्यूटर गिफ्ट किया था। तो आई स्टार्टेड विद द नीड फॉर स्पीड 2 गेम दैट एवरी 90s किड रिमेम्बर, और जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो।
तो तब इट वाज अ मोमेंट कि आई वाज वेरी फाउंड कि मैं यार गेम्स बनाऊंगा, नहीं ये मुझे गाड़ी जो है, ये जो नीड फॉर स्पीड गाड़ी है, ये मुझे रोड से साइड पे क्यों नहीं मूव करने देते, रिस्ट्रिक्शंस क्यों होनी चाहिए। फिर जीटीए जैसी गेम्स आ गई जिसमें आपको फुल मैप ओवरव्यू मिल रहा होता है। तो फिर मैं इस चीज के अंदर बड़ा फोकस हो रहा था। मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था, ब्लॉग्स वगैरह देखते रहता था किस तरह से गेम्स बनाई जाए। तो फिर खैर वो भी शो खत्म हुआ फिर, लेकिन मेरा था कंप्यूटर्स के अंदर काफी इंटरेस्ट था। तो इट वाज 2015 जिसके अंदर मैंने फर्स्ट एक ऑनलाइन एड्स एजेंसी स्टार्ट की थी, द सेम जिस प्लेटफॉर्म पे अभी OLX काम कर रहा है। Definitely they've been working for it for so long now, और वो ये काम हो सकता है उनका आइडिया पहले से हो, लेकिन मेरे माइंड में ये वाला आइडिया था कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर हम काम करें। तो मुझे खैर आई वाज अ वन मैन शो, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। सो मैं एक वेबसाइट बनाई थी, आज भी वो वेबसाइट है earnonline.base.pk के नाम से। तो इसके ऊपर मैं ये काम कर रहा था, द सेम द OLX कॉन्सेप्ट काम करते हैं। फिर उसके बाद उसी टाइम दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर मैं आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय ओन। मैं इवन जब FSC में जब मैं आया था फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के टाइम पे, देन आई मूव टू दुबई। तो मेरी तब मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मैं बस एग्जाम देने पाकिस्तान आता था। देन आई वेंट बैक इन दुबई। तो तब मैंने वहाँ से एक कॉल सेंटर पे, मैकडोनल्ड्स कॉल सेंटर था शेख ज़ायद रोड के ऊपर, वहाँ पे मैं काम करना स्टार्ट किया था मैंने। आई वाज प्रीटी यंग वो, बट या तो फिर एक तब से एक जोश आया कि बस अब काम करना है, अब फारिग नहीं बैठना कि तो क्यों मैं अपना हूँ, तो कुछ ना कुछ लेट्स डू दिस। सो या, सो देन स्टॉप। ओके, सो हाउ वाज इट वर्किंग? अगर सिर्फ कॉल सेंटर ही था, लेकिन जब पीपल आर ऑर्डरिंग फूड, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट? टेक्निकली तो आप मैकडॉनल्ड्स में ही काम कर रहे थे। या फूड। food. Food, yeah, every time you listen to some food, तब दो उस कॉल सेंटर में दो लैंग्वेजेस की यूज होती थी, या इंग्लिश या आप अरबिक। मतलब तो आई वाज इन, क्योंकि मुझे अरबिक नहीं आती थी, तो मैं इंग्लिश की जितनी भी कॉल्स आती थी तो मैं वो अटेंड कर रहा होता था। तो स्टार्टिंग में तो वो ऐसी ऐसी चीजों के नाम लेते थे जो मुझे पता नहीं होती थी। आई यूज्ड टू ask them spell, can you please spell it so that I can type उन तो उसके बाद जब फूड की बात आती है तो डेफिनेटली फिर आई एम सो फूडी। Although I don't look like by my physique, but I eat 6 to 7 times meal a day. जैसे कुछ लोगों की फिजिक से लिटरली नहीं लगता कि दे आर फूडीज। तो दिस इज व्हेन यू नो मैंने कुछ करना है, थिंग्स स्टार्टेड इन यू। तो जो स्टार्टअप्स हैं, जो आपकी अपनी कंपनीज है, वो आपने कैसे फाइंड करना शुरू की? हाँ, तो tourism was my मतलब hobby भी कह लें आप कि I've been to 4 different countries, I've been to all over the Pakistan। इसके अलावा भी फादर की जॉब की वजह से तो भी we've been moving around the country। So tourism एक ऐसी चीज जो मैं बहुत ज़्यादा क्रेज था, मुझे करना था। लेकिन ड्यू टू कि मैं 2015 से ये रियलाइज कर चुका था यार, बस अब आई शुड स्टॉप आस्किंग मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स। सो तब हम्म। मैंने कहा यार, टूर्स भी करने हैं मुझे और मुझे फादर से मदर से पैसे भी नहीं मांगने, तो व्हाट शुड आई डू? So then I created a Facebook page, और उस पे मैंने जहाँ जहाँ मैं जाना चाह रहा था, जिस जगह को मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था, वहाँ पे मैंने पहले मैंने कॉल्स करता था होटल्स वगैरह को कि हाँ आपके होटल का रेट कितना है, ठीक है। उन्होंने मुझे एक रेट बता दिया, मैं अपनी कॉस्टिंग निकाल के हम्म। फिर मैं देखता था कि यार चलो अपने साथ अगर 5 बंदे भी साथ लेके जाता हूँ, तो अगर मेरी कॉस्ट फ्री में निकल आती है तो दैट्स एनफ। आई वाज नॉट इनटू दैट प्रॉफिट थिंग फर्स्ट ऑफ इन स्टार्ट। तो फिर मैंने इस तरह से टूर्स अनाउंस करने शुरू किए और लेके जाना शुरू कर दिया। तो that was that worked। और इनफैक्ट इसके पीछे भी एक बड़ी फनी स्टोरी है। व्हेन आई केम इन यूनिवर्सिटी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दुबई, सो फर्स्ट आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर और मैंने एक आते ही एक टूर अनाउंस कर दिया। I was it was first time I was shifted in Abjabad with my family।
सो मुझे मुशपुरी, नथिया गली इन सब चीज़ों का बड़ा क्रेज़ था। सो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं इनको, बट स्टिल मैंने कहा टूर लेके जाते हैं। तो मैंने जी टूर अलाउंस कर दिया जी। आई गॉट 115 bookings in 4 days. तो मैंने कहा ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा ट्रिप था सैटरडे को, और फ्राइडे नाइट, फ्राइडे इवनिंग मुझे कॉल आती है मेरे एचओडी की कि यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यू डोंट नो द रूल्स, यू ब्रोक द रूल्स। आपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को आप लेके जा रहे हो और आपने यूनिवर्सिटी को नॉलेज में नहीं लाया है, आपने बताया नहीं। मैंने कहा सर आई गॉट अ startup, that's my personal thing, why should I involve university in this, and students are going on their weekend, and that's an off day from university, but still I got suspended for 3 months. So although I managed to save my semester, but that was quite a hard time for me. So एक tourism का startup मैंने इस तरह से start किया था. So always you have to take the risk. That's what I learned from when you go for a startup things. तो फिर I was very fond of photography. मैं जब अपने टूर्स लेके जाता था उसके फोटोग्राफी या उसके अपने व्लॉग्स वगैरह भी खुद बनाता था, फिर वीडियोस वगैरह भी खुद बनाता था, उसको डॉक्यूमेंट कर रहा होता था प्रॉपर. तो एक चीज मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आया तो मैंने देखा काफी सारे लोग हैं जो फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं. तो like and they're doing at friends birthday parties or at the weddings, and they're doing all for free, for nothing, even they cannot afford a camera. So फिर मैंने कहा यार और फिर उन फोटोग्राफर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती. अक्सर मुझे ऐसा फील होता था दैट फोटोग्राफर कहना, हालांकि अगर आप फॉरेन वगैरह के अंदर देखें तो दैट्स अ ग्रेट जॉब और दैट्स अ हाईली पेड जॉब और उनकी आपको रिस्पेक्ट करते हैं. पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यू शुड एग्री विद मी कि यहाँ पे हम फोटोग्राफर को ऐसे बुलाते हैं, ओए फोटोग्राफर इधर आ, या जो भी है. तो एक 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 मुझे अब्यूज सी लगने लग गई थी. तो मैंने कहा यार नो, this is not the thing. So then I created a platform named Fotero, जिसके अंदर मैंने कहा फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स अपने आप को रजिस्टर करेंगे. इट्स विल बी अ मार्केट प्लेस और वो अपना पोर्टफोलियो भी लगाएंगे और स्टार रेटिंग के साथ लोगों से हायर भी करेंगे और वो अपने चार्जेस लगाएंगे, ताकि फिर वो एक अर्निंग का सोर्स भी हो. क्योंकि तब डीएसएलआर वगैरह बहुत ज्यादा इन थे मार्केट के अंदर, हर बंदे के पास डीएसएलआर था और हर बंदा अपनी शादी वगैरह के अंदर या डिफरेंट पार्टीज वगैरह के खिंचवाना चाहता था, वेडिंग शॉट्स वगैरह. तो मैंने कहा यार दिट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स हु ओन अ डीएसएलआर कैमरा. सो देन आई क्रिएटेड then I started this startup. Yeah. Okay, so this all was happening with your university because यूनिवर्सिटी में काफी लोग जो है ना, अब हमारे यहाँ कहते हैं ना, बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं, हम यूनिवर्सिटी में हैं, दैट्स इट, वो अभी Yes. अम्मा अब्बा की गोदी में बैठे होते हैं. या पता है क्या, मैं अभी भी अपने स्टूडेंट जो मुझसे कुछ पूछता है या स्टूडेंट्स के जो नई नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं उनको मैं एक चीज कहता हूँ, यार आप लोग कहते हो कि जॉब नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जॉब्स नहीं है. मैंने कहा आप बताओ आपने अब तक क्या किया है. इनफैक्ट मैं जब इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो फ्रेश ग्रेजुएट्स मेरे पास आ रहे होते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस. तो मैं उनको ये पूछता हूँ यार यूनिवर्सिटी के 4 इयर्स आपने क्या किया. सर हम यूनिवर्सिटी में थे, हम मतलब हम काम किस तरह करते हैं, हमें कौन जॉब नहीं देता. मैंने कहा यार स्टार्ट फ्रॉम द इंटर्नशिप. जब यूनिवर्सिटी में व्हेन योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एटलीस्ट फ्री इंटर्नशिप्स. ये जो 4 एक्सपीरियंस होता है ये आपने यूनिवर्सिटी से ही लेना होता है. यूनिवर्सिटी की 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन करने के बाद जाके आप जब फ्री इंटर्नशिप कहीं से आप ढूंढ रहे होते हो, तो इज इट बेटर कि आप वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दो. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम माय फर्स्ट सेमेस्टर. मैं आई डिड इंटर्नशिप्स, आई वाज डूइंग विद स्टार्टअप्स. तो या यूनिवर्सिटी की हमारी एजुकेशन लाइफ आपको बिल्कुल पता है कि हमारी एजुकेशनल किस तरह की है. हमें वहाँ पे सिर्फ मार्क्स के पीछे भगाया जाता है और जो बुक्स हमें पढ़ाई जाती हैं, इट्स फ्रॉम द 90s. देयर इज नो अपडेटेड नॉलेज जो आपको गिवन दिया जाता है. बस टीचर्स आर कमिंग, वो आपको एक प्रेजेंटेशन दे के चले जाते हैं. दे डोंट हैव एनी कंसर्न कि आपको समझ आई नहीं आई, आप उस पर कोई रिसर्च कर रहे हो, कुछ चीज समझ रहे हो. नो, बस यू जस्ट नीड टू गेट द ग्रेड्स, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट योर डिग्री, दैट्स इट. सो अगर यही जब तक हमारा ये एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो जाता तो बेटर ग्रेड्स लो, डिग्री इज मस्ट. आई एम नॉट अगेंस्ट द डिग्री, बट
तो तब तक आप अपना एक्सपीरियंस गेन करो, अपने आप को डिफरेंट चीजों के अंदर इन्वॉल्व करो, दैट्स बेटर फॉर यू। Yes, and I think it's really really important because me being a seventh grader, I'm doing lots of things compared like to my Oh, age. lot of सारी things. जगह नहीं हूँ Yeah, I और know. like मुझे बहुत सारे डिफरेंट फीडबैक्स होते हैं और मेरी अब लोग के अभी एनी यू आस्क एनीबॉडी 12 साल पढ़ने की एज होती है, यू फोकस ऑन स्टडीज और फिर बाद में तुम कुछ करना, और फिर जब यूनिवर्सिटी में आई से दिस देन दे आर लाइक नहीं यार तुम यूनिवर्सिटी कंप्लीट करोगे फिर तुम कुछ सोचोगी। बट माई Hmm. डैड से इसके यूनिवर्सिटी तक तुम इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि तुम उसके बाद तुम बेशक जाओ कि हाँ चलो ठीक है मैं अपना फुल टाइम अपना बिजनेस संभाल लेती हूँ या चलो मैं ये कर लेती हूँ। तो दिस इज समथिंग दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। और मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे होते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे उनको बोलना भी नहीं आता होता, एंड दिस इज द एंटायर That's the thing. प्रॉब्लम। Perfect, perfect. और पेरेंट्स ही जिस तरह योर फादर इज वेरी सपोर्टिव, आई हैव मेट हिम पर्सनली एज वेल। तो ऐसे होते हैं हमारे पेरेंट्स, क्या कर रहे होते हैं, हमें अभी तक वो स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं। चलो जी मेरे बच्चे ने गाना खाया है नहीं खाया, फिर इसी तरह के बाबू शोना मिल जाते हैं उन्हें, वो भी उन्हें यही काम करा रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने डेफिनेटली यार, उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चे को बड़ा समझें। ठीक है उनके लिए हम बच्चे हैं, लेकिन जब तक आप ही एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द होम। जब आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस, यस यू कैन डू दिस। इवन मेरे अभी तक ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें वो पेरेंट्स इस्लामाबाद से लाहौर तक अकेले नहीं जाने देते। यार आप कैसे जाओगे लाहौर, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ अलग सिटी, कम ऑन मैन। आई वाज लाइक यार जब तक उसे आप छोड़ोगी नहीं तो डेफिनेटली वो फिर उसी तरह ही रहेगा आपके लिए। दे तो आर कैसे एक्चुअली बात बेबीज। करते हैं। या अब मैं आई हैव बीन टू इस्लामाबाद फ्रॉम लाहौर अलोन। पिछले दिनों मैं गई थी, आई थिंक एग्जैक्टली अ मंथ बैक। तो मैं अकेली गई ओ, थी because I needed to be there. I had nobody with me. और अब आपको आई थिंक आई कॉन्फिडेंस नीड टू देना बी पड़ता है। इंडिपेंडेंट इनफ टू डू दैट। और अगर अभी तक लाइक अभी तो ठीक है गोदी वाली थोड़ी बहुत तो मेरी एज है अब, लेकिन as soon as I get like maybe 13 या 13 से ऊपर फिर उसके बाद गोदी से हल्का सा बाहर निकलना पड़ता है। अब बिल्कुल अभी जो भी है इतना कि मुझे डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, नहीं कि बाबा वो अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं, लाइक बिल्कुल ही तो मैंने अब्बा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। डेफिनेटली डेफिनेटली पेरेंट्स को ही कॉन्फिडेंस देना चाहिए अपने बच्चों को कि वो अभी मूव ऑन करने का टाइम है। ठीक है 10 साल 12 साल ले लिया उन्होंने, आप अभी यू आर इन 12, यू आर जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, तो उसके बाद आपने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है और माशाल्लाह से बहुत कुछ अचीव करना है अभी आपने। तो अगर इस एज तक आपने इतना कुछ अचीव किया। अच्छा, अगर अ फनी स्टोरी टू टेल यू, जब मैं मैकडॉनल्ड कॉल सेंटर के अंदर जॉब करने गया था, आई वाज क्वाइट यंग, सो तो जब जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि यार अभी तो आपकी एज है पढ़ने की, यू आर जस्ट कंप्लीटेड 10th, तो आपने 12 करनी है फिर डिग्री में जाना है, तो व्हाई सो अर्ली। तो वो मुझे क्वेश्चन जो आंसर याद है मेरा। तो मैंने कहा था सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं अभी स्टार्ट कर आपको, आप इस टाइम एचआर मैनेजर की पोस्ट में हैं, तो आपको कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो कहता है मैंने एचआर जूनियर असिस्टेंट से स्टार्ट किया था, तो मुझे करीबन 4 इयर्स लगे, मैं एचआर मैनेजर की पोस्ट पे आ गया हूँ। तो मैंने कहा सर अभी मैं ज्वाइन करता हूँ एज अ कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, और तो मुझे कितना टाइम लगेगा एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे जाने के लिए। उसने कहा टोटली डिपेंड्स, यू यूजुअली टेक्स 4 to 5 years। तो मैंने कहा सर वो 5 years में मैं आपके बराबर की पोजीशन में आ जाऊंगा। तो बजाय वो 5 years में मैं स्टडीज, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं स्टडीज छोड़ रहा हूँ, मैं आई एम कंटिन्यूइंग माय स्टडीज, बट स्टडीज के साथ साथ आई विल बी इन सेकंड ईयर ऑफ माय यूनिवर्सिटी, आई विल बी ऑन द मैनेजर पोस्ट। तो दिस इज द थिंग कि आपको जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, और जब मैं डिग्री अपनी कंप्लीट कर आई कैन बी द सीईओ ऑफ योर कंपनी। सो आई वाज क्वाइट लाफिंग, और इस बेस पे उसने मुझे फौरन से हायर कर लिया। यूजुअली दे डोंट हायर, मतलब एटलीस्ट दे आस्क फॉर 12 year एजुकेशन। दिस इज द थिंग, आपको अभी से ही कुछ करना होता है अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में, अदरवाइज वहीं 40 पे रिटायरमेंट और
तब तक आप मुश्किल से 17-18 ग्रेड पे पहुंचो और रिटायरमेंट होके बैठ जाओ और फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करो कि वो फिर उन्हें स्पून फीडिंग भी साथ कर। Yeah. So, you also work, पता नहीं आपकी position क्या है, but you also work for the UN, correct? Yes, UN. I work for the UN. Actually, I started with the civic education program, जिसपे यूएन वॉलंटियर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं और सिविक एजुकेशन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड विद दैट और उसके बाद फिर वो प्रोग्राम एंड हुआ। देन दे ऑफर्ड मी, आई वाज वर्किंग विद स्टार्टअप एज वेल। देन उनका एक बिजनेस इंक्यूबेशन का प्रोग्राम था, जिसमें केपी के रूरल एरियाज और एजेंसीज, जिसमें के फाटा वगैरह हो गई और डिफरेंट एजेंसीज हो गई, वहाँ के एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था बिजनेस इंक्यूबेशन ट्रेनिंग का। आई वाज द ट्रेनर, जिसमें हमने ट्रेनिंग देनी थी ऑन, मैंने 2 बैचेस को ट्रेन किया था जिसमें 80 टू 120 स्टूडेंट्स थे, जिस जो छोटी-छोटी फ्रेंचाइज़ीज़ या कोई ना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस ऑन कर रहे थे। तो दैट वाज द प्रोजेक्ट और दैट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। उसका एक नेक्स्ट फेज़ आफ्टर दिस लॉकडाउन विल कंटिन्यू। Yes. And how is it working as an event manager in Startup Grind? Because Startup Grind, you see, जो हमारा startup ecosystem है, it's very very popular. और उसमें मजे की बात ये है कि they have fireside chats or NICs around Pakistan, or even जो दूसरे incubation centers हैं, even like Doshal, वहाँ पे भी the talks are going on। और फिर तो मजे की बात इस कि मैंने फायरसाइड चैट्स किए हैं विद मोनेस, विद द सीईओ ऑफ जैज, इतनी ज्यादा मैंने अटेंड किए हैं कि आई वाज सो फैसिनेटेड, आई वाज लाइक ओह आई एम गोना गो देयर। तो वो बहुत मजे का एक्सपीरियंस था। लेकिन हाउ इज इट एन एक्सपीरियंस फॉर यू? It's a best experience you can say कि owning a startup, फिर उसके बाद meeting different startups और फिर उनकी एक story. I'm more into knowing their stories. The way I ask you your story, the way I do ask many startups to tell their story, how they started, or how they're doing now, or what was actually there in mind before starting a startup. तो एक जो एक मजे की स्टोरीज बनती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ती हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं होती। और स्टार्टिंग फ्रॉम होम, आपको पहले अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस टाइम सक्सेसफुल या इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टार्टअप्स हैं, दे आर मोस्टली यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स। फिर एक बहुत बड़ा खानदान का, बिकॉज ऑफ फैमिली सिस्टम हियर, तो उसके बाद फिर फैमिली का प्रेशर कि नहीं ये क्या यूनिवर्सिटी से छोड़ रहा है, ये क्या बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस के लिए एक जो पुराना माइंड हमारे माइंड में है कि भाई आप बिजनेस वो है जिसके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो एक बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री का मालिक है और आपको इतने ज्यादा पैसे चाहिए। तो फिर एक स्टार्टअप कल्चर के अंदर आना, जहाँ पे उनको समझाना कि पहले अपनी फैमिली को समझाना, फिर फ्रेंड्स के समझाना, फिर वो कौन से फ्रेंड्स होते हैं जो आपको हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास 1 रुपया नहीं होता जेब के अंदर और आप एक बहुत बड़े आइडिया को लेके जा रहे होते हो आगे और एक बहुत बड़े एम्बिशन के साथ मूव कर रहे होते हो। तो ये जो स्टोरीज होती हैं, आई एम सो मच इनटू नोइंग देयर स्टोरीज। और अब तक इवन जब दोशल के हमारी स्टार्टअप्स होते हैं, आई डू द शॉर्ट लिस्टिंग एज वेल। तो इस टाइम तक तकरीबन कोई 3000 प्लस आइडियाज से मैं गुजर चुका हूँ या देख चुका हूँ। तो एक मजे मजे की क्रिएटिविटी आइडियाज फिर हमें मुश्किल हो जाती है सिलेक्ट करने में कि कौन से आइडिया को हम सिलेक्ट करें। फिर जब गूगल स्टार्टअप ग्राइंड की बात आती है, तो फिर दैट्स एन इंटरनेशनल इवेंट और पूरी दुनिया से इसे लोग देख रहे होते हैं। एंड people are mostly likely into watching the Pakistani ecosystem, startups ecosystem. तो फिर उसके लिए फिर सिलेक्ट करना कि हाँ किस में इतना पैशन है, किसको बुलाया जाए। क्योंकि अक्सर हम जब स्टार्टअप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, हम इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। दैट्स ये एक इनसाइड टॉक है, बट आई एम शेयरिंग विद यू कि हम यार ये जो टीम लेके आए हैं या ये जो बंदा जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, कि ये कितना पैशनेट है अबाउट देयर स्टार्टअप, कि ये बीच में जाके गिव अप तो नहीं कर देगा। अगर हमें वो क्वालिटीज नजर आ जाए उस बंदे के अंदर, चाहे उसका आइडिया कोई भी हो, उसको सक्सेसफुल करना अब वो हमारा काम है, लेकिन वो आइडिया सिलेक्ट करना उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैशनेट है अपने उस आइडिया को लेके। तो कि वो गिव अप कभी नहीं करेगा और वो तमाम हर्डल्स को क्रॉस करेगा, इन्वेस्टर्स तक पहुंचेगा, अपने लिए इन्वेस्टमेंट रेज करेगा और फिर
एक दिन वो $1 billion कंपनी बनेगी. So that's a couple of about startups. You know. Yeah, and also I know that Doshil pay bhi kar raha hai apne startups ko monthly, I guess. So like when Yes, you're paying और आप एक training provide कर रहे हो, you need कि your training is worth it. कि वो बंदा अगर दरमियान में जाके छोड़ दे तो फिर कोई फायदा तो नहीं होगा ना. एंड पे तो he gave up. So I think it's really definitely. really important. But what do you think are the reasons कि अभी तक पाकिस्तान never really got a unicorn अभी तक? Okay, so इसके पीछे we got couple of reasons. First, our government recently getting that startup things. अभी knowledge awareness नहीं है, knowledge नहीं है. फिर उसके बाद starting from the background, family export नहीं मिलती हमें. हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज भी हैं. फिर उसके बाद एक स्टार्टअप जो कंप्लीट कर देता है वो एक पाकिस्तान को यूनिकॉर्न बना सकता है या बन सकता है वो खुद यूनिकॉर्न. वो मूव कर जाता है किसी और कंट्री के अंदर. जिस तरह कनाडा स्टार्टअप्स को सबसे जल्दी इमिग्रेशन दे रहा है. वो मतलब पाकिस्तान पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है या कोई इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं है पीआर लेने का जितना कनाडा दे रहा है. कि अगर आपके पास एक अच्छा स्टार्टअप है और वहाँ पे किसी स्टार्टअप इंक्यूबेशन में आप इंक्यूबेट हो जाते हो और आप वहां बाद में पहुंचोगे आपको पीआर पहले मिल जाएगी. मतलब दे कंट्रीज इतना ज्यादा फोकस कर रही हैं स्टार्टअप कल्चर के ऊपर कि आप उससे जॉब्स क्रिएट कर रहे हो उनके एरिया में, ना कि उनसे जॉब मांग रहे हो आप. तो खैर स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंची कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझ सके और या उनके लिए कुछ फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके. फिर उसके बाद जब स्टार्टअप एक स्टार्ट कर रहा होता है उसको फैमिली प्रेशर बियर करना पड़ रहा होता है. फाइनेंशियल क्राइसिस में वो काफ़ी सारा जा रहा होता है. उसको फ्रेंड्स का काफ़ी सारा प्रेशर हो जाता है. फिर हर जगह से वो नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव थिंग्स मिल रही होती हैं. फिर वो इन सबको फेस करके फिर अगर आगे पहुंच भी जाता है तो फिर इतना ज़्यादा वो डेस्परेट हो चुका होता है और अपनी लोगों से अपनी कंट्री से फिर वो मूव कर रहा होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द अगर हम बात करें अब हमारा कितना ज़बरदस्त स्टार्टअप था. मार्कहोर्स हो गया, एटम हो गया, वो सिलिकॉन वैली मूव करके चले गए. फिर ऐसे ही अभी इवन करीम मुदस्सिर शेखा की बात की जाए तो उनकी स्टोरी अगर सुनी जाए तो वो ही वाज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पाकिस्तान. बट जब वो उन चीजों के अंदर पड़े उनके लीगैलिटीज के अंदर एंड ही सेड नो आई एम नॉट डूइंग. ही मूव टू दुबई. उन्होंने वहां पे 24 आवर्स के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई एंड ही स्टार्टेड हिज ऑपरेशंस फ्रॉम देयर. फर्स्ट ही वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम द पाकिस्तान. बट ये जो लीगैलिटीज का जो इश्यूज आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये काफी सारा अभी पाकिस्तान के अंदर ये तो कहा जाता है कि भाई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई, एक स्टार्टअप ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेज कर ली. लेकिन बेसिकली वो स्टार्टअप रजिस्टर किसी और कंट्री के अंदर होता है, होते वो बेशक पाकिस्तानी है. लेकिन जब उनका पैसा फिर पाकिस्तान में सिर्फ बताया जा रहा होता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई बट उनके जो पैसा होता है वो बाहर से ही रिवॉल्व कर रहा होता है. तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से एक जो फुल फ्लैज यूनिकॉर्न स्टार्टअप हम कह सकें जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा. बट वी आर क्विट होपफुल कि इंशाल्लाह जैसे 12 साल के बच्चे आजकल स्टार्टअप्स पे आ गए हैं तो वी आर होपिंग वेरी soon we are getting so many things off of it. Yes, and I am really really passionate about the point that जो हल्का जिनको थोड़ा सा बूस्ट पाकिस्तान में मिलता है उनके दिमाग में ये चीज आती है कि हाँ यार अगर मैं कनाडा में हूँ फिर सबसे जो आजकल ज्यादा होता है अगर मैं सिंगापुर में हूँ तो मुझे ज्यादा मिलेगा ये बूस्ट. तो व्हाई डोंट आई मूव देयर. दे थिंक इट. और फिर हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि फैमिली जब बाहर जाने पाए तो फौरन मान जाती हैं और वहां से Yeah. करके वो बाहर चले जाते हैं और वो ही यूनिकॉर्न अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा. और दिस इज समथिंग. अब मुझे भी था कि हाँ यार अब पाकिस्तान में अगर लोग कहते हैं कि हाँ बेटा तो बहुत अच्छा काम करी हो बाहर लोग मुझे क्या कहेंगे. फिर आई थिंक कि नहीं यार आई वाज बोर्न इन दिस कंट्री. आई एम सपोज टू सर्व दिस कंट्री. बट इफ आई गो बाहर मतलब मैं बाहर चली जाऊँ तो बस मेरे साथ वो नेशनैलिटी होगी ना. बोर्न इन पाकिस्तान, रेज्ड इन कनाडा या फिर Born. रेज्ड इन whichever country I go to. Uh-huh.
तो yes. फिर there is no और fun in देखें, it. डेफिनेटली, और फिर यही होता है। अभी आई विल नॉट नेम इट, बट किसी फॉरेन कंट्री के एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी ने कहा था कि पाकिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ पाकिस्तानीज। They just born in Pakistan, they do all their businesses in a foreign country, and when they are about to die, they ask, I have a final wish. I should be born in, die in Pakistan, or my grave should be in Pakistan. So Pakistan is just a grave for Pakistanis. So ये चीज हमें बड़ा पॉइंट है जो आज तक मतलब मुझे याद है, और मैं मतलब उसको फोकस करता हूँ और अपने स्टार्टअप से बात कर रहा होता हूँ, तो यार डोंट मेक अ ग्रेव यार्ड। पाकिस्तान को एक ग्रेव यार्ड मत बनाओ। अगर तुम लोग, पाकिस्तान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर खान कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान हमने 1 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है, तो वो आप लोगों ने क्रिएट करनी है। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है जॉब क्रिएट करना। हाँ, उसका काम है कि आपको अपॉर्चुनिटीज देना, आपको फैसिलिटेट करना, पर जो जॉब्स क्रिएट करनी है वो आपने क्रिएट करनी है। और जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, जब तक मुल्क की इकोनॉमी के अंदर आप लोग कोई कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो पाकिस्तान फिर ग्रेवयार्ड ही बन के रह जाएगा पाकिस्तानी से। Yes, that's so true. And Masi ki baat, so I think you know about it. I mean, you are into this entrepreneurship ecosystem, ये सारा. So Kamyab Naujawan, the new project Yes. of the government. So the person who's the advisor to the prime minister on this, Sir Hassan Sayed, I've met him a lot of times. He's been to my house and we've talked over this entire thing. And talking to him, I realized that the government wants people to come out. लेकिन वो यही होगा ना कि अगर कोई वो जो कुछ हीरे होते हैं जो अपने अम्मा अब्बा को मना के किसी ना किसी तरीके वो आ जाते हैं ऊपर, फिर उनको ही फंडिंग मिलती है और दूसरे कहते हैं यार हमारे पास भी आइडिया था। तो बेहतर ये होता है कि अब if the government has started to support startups, तो it's our jobs कि अब हम जो है ना दिमाग पे ज्यादा जोर डाल के कहें नहीं अब मैंने सोचना है एक आइडिया, और वो किसी ना किसी तरीके आता है और आप उसे करते हो। परफेक्ट। तो यही चीज केपी के जो जुडिशियल्स हैं, दैट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और हम इंकरेज कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स को। यार चलो, स्टार्टअप की एक मसला होता है कि यार जितनी देर में हमारा स्टार्टअप नहीं चला, हम अर्निंग का सोर्स कहाँ से लाएंगे। हमने कहा हम आपको 30,000 देते हैं, आप पर पर्सन 30,000, मतलब इफ यू हैव अ टीम ऑफ 4, देन यू आर गेटिंग 1,20,000 पर मंथ टू वर्क ऑन योर स्टार्टअप। और हम कोई इक्विटी भी नहीं ले रहे, आपसे 1% का शेयर भी नहीं ले रहे। वी जस्ट वांट कि आप काम करो अपने स्टार्टअप के ऊपर। और बहुत अक्सर होता है और देखने में आया आता है कि दे जस्ट कम फॉर टू ग्रैब द गवर्नमेंट्स मनी, एंड when their incubation cycle is completed, they just move away। Yes, और ये चीज काफी डिसअपॉइंट करती है हमें। it's really disappointing क्योंकि आप पैसा दे रहे हो और आप जितना वक्त दे रहे हैं, you're giving time and all the other people who are there for trainings, और even जो लोग एक एक सेशन सिर्फ देने के लिए आते हैं वो भी टेक्निकली टाइम दे रहे होते हैं, टाइम इज मनी एंड they're giving their money to you because they could be doing या something else, making money at that time. और जब आपके पास इतना पैसा आ रहा है, हुकूमत से भी आपके पास पैसा आ रहा है, आपको जगह मिल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आप क्यों नखरे कर रहे हो? The thing is then you really need to work. For some people it's motivation to work, to some people it's motivation not to work, so works both ways. yes, yes, that's the things। Yeah, so because now we're getting to the end of our interview, so what's the last message that you want to give to the young people of Pakistan? All right. So, depending on the situation we are going through, that pandemic situations and the COVID-19 is on the top of here. So, I would request you guys. So, please stay at home. We got so much stuff to do in next upcoming months. We're already wasted so much time. So, stop making memes instead. Just spread awareness. और घर पे रहें, क्योंकि पाकिस्तानीज आर वेरी गुड मीमर्स ना। वी डू, हमें ये अच्छा
टाइम मिलता है कि टू स्पेंड टाइम, जो फालतू टाइम हमारे पास होता है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दिस टाइम बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप लोग वो ऑनलाइन कोर्सेज कैरी आउट करें। ग्रो विद गूगल, गूगल एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल ने बहुत सारे कोर्सेज, यूएन ने बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री कर दिए हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन अदर एक्टिविटीज, इस टाइम को यूटिलाइज करें और खुद भी घर पे रहें, दूसरों को भी सेव करें, और वी होप कि ये सिचुएशन जल्द एंड हो, एंड हमारी कंट्री का भी और पूरी वर्ल्ड का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। सो आई हैव गुड लक विद यू ऑल, एंड learn this entrepreneurship culture, be into it, instead of going for or looking for jobs, create jobs, be your own boss. Or I guess that's it from my side, and keep following Raheen. She's a very good. Even when first I talked to her, I was like, "You're a little sis to me." So she's doing very wonderful job, guys. In this age of 12 years, so if she can do this much, so आप तो क्या कुछ नहीं कर सकते यार। तो आपका आइडियल कोई भी हो सकता है। So you just जो अच्छी चीज है उसे pick करें और keep following the track. Yeah, thank you That's so much, Arsalan Baloch, for coming and telling us your stories, and especially the funny ones. They were so good. it. And guys, this was Arsalan Baloch, and we'll come soon with another person and another story. Goodbye.